Good evening. From the court's practice point of view, and also necessary for the judiciary, the aspirants who are appearing for judiciary, particularly UP judiciary के लिए जो plan कर रहे हैं. Today we are going to take the third lecture on important orders and important rules of CPC. Like our previous practice, I am going to revisit the previous orders we have already discussed. For civil suit, first of all, we have to ascertain whose jurisdiction we have to file the suit. After that, we need the suit to be filed in the form of plaint in the court. Court will issue the process to the defendant, the opposite party. Opposite party will appear and file WS or set off if he has something to claim, or the counter claim. Then plaintiff may file the replication to counter the pleadings of the defendant to the WS. These three jointly are called the pleadings of the suit. Then this stage comes, pleadings includes documents also, plus documents of both the parties in support of the pleadings or the premises statements. Then after completion of pleadings, the stage comes for admission denial. Of documents and the statement of admission. That is called the queries, answering the queries. When the pleadings are complete from both the parties and this process is complete, for the disputed facts, we go to frame the issues. And for admitted fact, there would be judgment on admission. And after issues, the trial will commence and both the parties will lead their evidence. In the last two lectures, we have informed you about the schedule, the important orders and the rules. In this part, if anybody is having any difficulty, may raise their hands. We had orders and important rules. Order 1 talks about the parties. An important rule was Rule 10, that was relating to altering of the parties, adding or striking. Or striking. Striking of the party means the party that is not required, necessary for the purpose of suit. Adding means any party
which is not being named in the memo of parties earlier with the plaint, but later on an application is moved to add some party. For that you have to prove that the party is necessary, his presence is necessary to determine the issues in the suit. मीन्स जो डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए उस पार्टी की प्रेजेंस जरूरी है. यू हैव टू प्रूव दैट. आई ऑल्सो इन्फॉर्म्ड यू पीपल that though this rule mentioned at any stage of the proceedings, but in 2002 amendment, this at any stage को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया गया है और कह दिया है नॉट आफ्टर कमेंसिंग ऑफ द ट्रायल. मीन्स अगर आपने अमेंड करना है कोई भी प्लीडिंग्स पार्टीज को तो आप उससे पहले नहीं कर सकते. सेम सिचुएशन ऑर्डर 6 रूल 17 में प्लीडिंग्स के लिए भी की गई है. राइट वो इसलिए की गई है कि आप बार बार क्लॉक के हैंड को वापस नहीं ले जा सकते हो डी नोवा ट्रायल की तरफ. फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आ गई, एविडेंस लीड हो गई एंड यू आर गोइंग टू अमेंड द सूट और एडिंग द पार्टीज. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. बार बार ऐसा नहीं कर सकते हो, इससे ट्रायल प्रोलॉन्ग होगा. तो टू कट शॉर्ट and to make it continuous process, this amendment was added. Okay. Order 2, Rule 2 and 3 were important, relating to relief and claims. Whatever relief you are asking in the suit or whatever is available, whatever are available or the claims, you have to state all. अगर ऐसा होगा तो आप दोबारा नहीं क्लेम कर सकते हो, फ्रेश सूट नहीं डाल सकते उसके लिए. हाँ एक प्रिविलेज दे रखा है कि आप को विद द लीव ऑफ द कोर्ट अगर कुछ भूल गए हो, कोई रिलीफ कोई क्लेम, और कोर्ट ये समझता है कि इट्स ओके, यू हैड रीजन्स टू डू दैट, मे परमिट. ओके. सो वाइल फ्रेमिंग द प्लेंट you have to be very very much cautious regarding placing of reliefs, placing of claims, because you would not be allowed to do this. Remember one thing when you are going for the pleadings, that whatever you have stated in the plaint, you cannot bring it fresh facts or fresh pleadings after the commencement of the trial. क्योंकि अगर आपने एविडेंस में भी कोई नए फैक्ट्स ले आए जो आपने प्लेंट में नहीं डाल रखा है तो उनको कोई पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो बियॉन्ड प्लीडिंग माने जाएंगे. सो दिस इज अ बिग कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर, बियॉन्ड प्लीडिंग्स. We call it improvement. So there is a settled principle, settled law, settled by a number of plethora of judgments, that whatever you set in your plaint, in your pleadings, you cannot go beyond that during complete trial. So you have to be very cautious while framing your plaint. Okay. Then we go for order 5. Order 3 and 4 are relating to frame of the suit. The suit would be filed after filing of the plaint. Institution is filing of plaint. 3 is relating to filing of suit through pleader or through authorized representative, if anyone is not able to come for any damn reasons.
he can authorize anybody or he can come to the court through authorized representatives. Okay, now we come to order 5. अब आपने पार्टीज पे डिसाइड कर ली, मेमो ऑफ पार्टीज आपकी फिक्स हो गई, और अब आपके प्लेंट भी तैयार हो गए। आपने सारे रिलीफ और सारे क्लेम भी बहुत ध्यान से डाल दिए, प्लीडिंग्स भी बढ़िया हो गई। नाउ स्टेज कम्स फॉर issuing of process, and that process procedure is being provided in order 5. Normally processes are to be issued by way of summons. It is summons for settlement. इसका नाम है summons for settlement, इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, और इसके लिए आपको कोर्ट में पीएफ फाइल करना है। आप इसे ई मेथड से भी डाल सकते हो, यानी कि अब ये व्हाट्सएप भी अलाउड है और ईमेल भी अलाउड है। उससे पहले आप आरसी एडी के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से भी प्रोसेस कर सकते हो। सो जो प्रैक्टिस में है उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस प्लेंट की तरह ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अगर प्रोसेस नहीं डला तो उसका क्या इफेक्ट है। आपने प्लेंट खूब बढ़िया से तैयार करी, पार्टीज खूब बढ़िया से समझ लिया, फीस भी बहुत बढ़िया से ले ली क्लाइंट से, अब तुम घर होकर निश्चिंत बैठ जाओ, हमने तुम्हारा केस डाल दिया है और अब तुम्हारे को रिलीफ मिला पक्का। पर ये कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा कि कितनी सारी टेक्निकलिटीज है। अगर सर्विस नॉर्मली हो गई तो ओके, ऑर्डनरी प्रोसेस। अगर ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं हुई तो 519A रूल लगेगा और आपको साइमल्टेनियस प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। जैसा ऊपर प्रोसेस है उसी तरह का प्रोसेस, यानी कि फिक्सेशन कर दी, चिपका दिया, पेस्टिंग कर दी, या हमने बीट ऑफ ड्रम कर दी, ढोल बजवा दिया, जो भी मेथड अवेलेबल है उस बंदे को बताने के लिए कि तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है। अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है और आपको लगता है कि बंदा घर छोड़ के चला गया है और उसका कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें कि हम उन्हें बता सकें कि आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस, दैट इज ऑर्डर 5 रूल 20, सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस। Substituted process is a publication. पब्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि वाइड सर्कुलेशन में होना चाहिए न्यूज़पेपर, और उस एरिया में जिस एरिया में ही वॉज लास्ट नोन टू बी रिजाइडेड। ओके, सो ये चीज़ें हमें ऑर्डर 5, उसके बाद हमने ऑर्डर 6 किया था, दैट वॉज रिलेटिंग टू प्लेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। इसमें आपको कहाँ कैसे क्या क्या करना है वो सारा था, और मैंने इसमें आपको ऑर्डर 6 रूल 17 के बारे में अभी बताया है जब मैं मेमो ऑफ पार्टीज के बारे में बता रही थी। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होएगा। अमेंड करना है तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, एंड यू हैव टू प्रूव दैट द अमेंडमेंट वाज नेसेसरी टू डिटरमिन द इश्यूज इन द क्वेश्चन। ये दो चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, तभी कोर्ट आपको अल्टरेशन अलाउ करेगा पार्टीज में या प्लेडिंग्स में। फिर हमने आपको ऑर्डर 7 बताया था। ऑर्डर 7 के सभी रूल्स, ऑलमोस्ट सारे रूल्स इंपॉर्टेंट थे। कल हमने आपको पहले लेक्चर में ऑर्डर 7 के बहुत सारे रूल्स जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो बताए थे, जिसको हम बहुत स्मॉल ब्रीफ में फिर दोबारा से रिविजिट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है रूल 6। कोई मुझे बताएगा जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, ये क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस पर एडवोकेट्स को भी और जुडिशरी के लिए जो भी तैयार कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है
हमारे पास लिमिटेशन एक्ट के अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले होता है। सेक्शन 5 में कंडोनेशन ऑफ डिले, बट दिस डिले इज अवेलेबल ओनली फॉर एप्लीकेशन एंड अपील। एप्लीकेशन एंड अपील के इसलिए क्योंकि उसमें छोटा पीरियड होता है, एप्लीकेशन के लिए 30 डेज जनरली और अपील के लिए 90 डेज, तो उस पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, तो इसलिए कंडोनेशन ऑफ डिले सफिशिएंट कॉज पर एप्लीकेबल अलाउड है। लेकिन सूट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फाइल करने में तो उसमें लिमिटेशन एक्ट कोई ऐसा प्रोविजन नहीं देता जिसमें आपका डिले कंडोन हो जाए, क्योंकि सूट में जनरली पीरियड 3 साल से 1 साल से लेकर, 1 साल बहुत कम सूट में है, 3 साल से लेकर 30 ईयर्स तक होता है। 30 ईयर्स भी बहुत कम में है, 1 साल भी बहुत कम में है, ज़्यादातर 3 साल से लेकर 12 साल। 12 साल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ज़्यादातर मनी सूट या ये जो जितने भी है उसमें 3 साल का पीरियड है, तो 3 साल तक भी आप नहीं फाइल कर सके, इसलिए वो सूट के लिए एग्जम्पशन कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउड नहीं कर रखा लिमिटेशन है। लेकिन दिस इज द प्रोविजन जिसने सूट के लिए भी एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन प्रोविजन डाल रखा है। अगर हमारा सूट फाइल होने में डिले हो गया तो इस डिले को हम एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एग्जम्पशन सीक कर सकते हैं फॉर कंडोनिंग डिले। वहां पे कंडोनिंग डिले का वर्ड यूज नहीं कर रखा है, एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन, क्योंकि कंडोनिंग डिले तो सेक्शन 5 का पार्ट है, एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन तो उसमें कंडीशन है बिल्कुल, आपने डिले से आपने एग्जम्पशन तब मिलेगा आप जबकि जो ग्राउंड आपका है जिसके लिए आप एग्जम्पशन मांग रहे हैं वो प्लेंट में लिखेंगे, वो प्लेंट के अंदर ही पार्ट होना चाहिए। ऑर्डर 6 के अंदर जो हम सारा लिखते हैं उसमें एक पैराग्राफ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आप टाइम पर क्यों नहीं आए हो, विद इन टाइम क्यों नहीं आए हो, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्लेंट में भी नहीं लिखा और आपका डिले भी है तो भी आप सफिशिएंट कॉज दिखाते हुए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो और कोर्ट में परमिट, इफ कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि ठीक है भाई जरूरी है, आप प्रॉब्लम है, तो एग्जम्पशन may be given from limitation. So this rule was very important जो जनरली कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऑर्डर 7 के और बहुत सारे रूल, 10 इट इज फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट और 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सो और ऑर्डर 7 रूल 9 एडमिशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट फाइल होने के बाद 3 ही बातें हो सकती है, तो एडमिट हो जाए या रिटर्न हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल था इसका, वो था रूल 13। एनीबडी कैन टेल मी जो लास्ट लेक्चर में थे, व्हाट रूल 13 सेज, कैसे पास होंगे एग्जाम में और कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे। आप गए बहुत बढ़िया से प्लेंट बनाया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिख दिया, टाइपिस्ट को खूब बढ़िया पैसे दे दिए, पूरा लॉ पढ़ लिया किस प्रोविजन में जाएगा, जुरिडिक्शन भी बढ़िया देख ली कोर्ट की, पार्टीज भी बढ़िया लिखी, प्लेंट कैसे तैयार होनी है उसका भी फ्रेम देख लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन गए तो रिजेक्ट हो गई, रिटर्न हो गई। उसके बाद क्लाइंट जी पूछ रहे हैं कि हमारा केस का क्या होएगा वकील साहब। रूल 13 कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट विल नॉट प्रिक्लूड यू टू फाइल ए फ्रेश सूट। आपने क्या कहना है, कोई बात नहीं थोड़ी सी फीस और ला, दोबारा लगा देते हैं, है ना। कोर्ट को समझ में नहीं आई बात, उसने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा फीस लिया, दोबारा लगा देते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, इतना आसान नहीं है गए रिजेक्ट कराया फिर आ गए।
Rejection of plaint will not preclude you to file a fresh suit, right? So these are the important provisions जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में करा। मैंने आपको बताया था प्लेंट के बाद प्रोसेस हो गया, अब दूसरी पार्टी आ गई, तब क्या होगा? ऑर्डर 8। आपकी प्लीडिंग्स तो आ गई रिकॉर्ड पर, अब किसकी प्लीडिंग आनी है? डिफेंडेंट की, डिफेंडेंट्स प्लीडिंग्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल 1, डिफेंडेंट की सर्विस की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर उसे अपनी प्लीडिंग डालनी होगी इन द फॉर्म ऑफ WS। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। 8 जुलाई को सर्विस हुई, 30 दिन 7 अगस्त तक WS फाइल करना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर टाइम ही नहीं रहा, सर मेरी तो लाइट चली गई थी, मेरा बिजली कट गई थी, मैंने चैम्बर शिफ्ट किया था, मेरी फाइल ही गायब हो गई, मैं तो जी गांव चला गया था, शादी थी बहन की, सर्विस हो गई। या क्लाइंट आ रहे हैं भागे भागे, वकील साहब वो एक संबंध तो आया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कब आया था। जवाब देने चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वकील साहब बोलेंगे कितने दिन हो गए, राइट? क्योंकि 30 दिन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। तो 30 दिन के अंदर अंदर, अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं फाइल हुआ तो क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है आपके पास? है। जुकाम हो गया था जी, एक्सीडेंट हो गया था जब फाइल करने आ रहे थे, बहुत सारे बहाने हैं, सफिशिएंट कॉज भी हो सकता है, राइट? भाई जब लिमिटेशन वाला देता है 30 दिन के बाद के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले, तो यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। कोर्ट परमिट कर देता है ऑन शोइंग सफिशिएंट कॉज, कोर्ट में ग्रांट लीव टू फाइल, लेकिन कब तक? जब मर्जी आ जाओ घूमते घूमते, अप टू 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज विद द कॉज। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास रूप से जिन लोगों को जुडिशरी में बैठना है, क्योंकि आपके पास एक केस आएगा, फैक्ट्स आएंगे, आप बढ़िया से लिख देंगे, RWS फाइल हो जाएगा, पता चला कि पीरियड तो निकल ही चुका था, राइट? वहां पे लिखा होगा कोर्ट ने परमिट कर दिया, इस तारीख को वो आया और हो गया, राइट? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि 30 दिन और 90 डेज। अब जो लोग यूपी जुडिशरी देने जा रहे हैं, या जिन्हें जुडिशरी में कोई भी जुडिशरी देनी है, तो एक कमर्शियल कोर्ट एक्ट आ गया है जिसे सारे लॉ को रिविजिट किया है और बहुत सारे चेंजेज आए हैं उसमें, प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से। यू विल शॉक टू नोट दैट ये जो पीरियड 90 डेज का है, ये पीरियड कमर्शियल कोर्ट में 120 डेज है। ओके, 2015 से, दिस इज फॉर कमर्शियल कोर्ट।
ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि आपके पास यही पीरियड अवेलेबल है। कमर्शियल कोर्ट ने एक और काम किया है अमेंडमेंट में। पहले वाले में ये नहीं लिखा हुआ था कि 90 डेज का पीरियड तक अलाउ कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट। 8 रूल 1 में इफेक्ट नहीं लिखा हुआ था, पर कमर्शियल कोर्ट की अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कोर्ट शैल नॉट परमिट after 120 days and right of filing of WS will be forfeited। डिफेंस टक ऑफ नहीं है ये, forfeited, तुम्हारा राइट ही खत्म, अब आप WS फाइल नहीं कर सकते हो, forfeited। और अगर आपने, मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर WS फाइल नहीं हुआ, डिफेंडेंट की प्लेडिंग्स नहीं आई, तो आप डिनाई नहीं कर सकोगे किसी चीज को, और जब आप डिनाई नहीं कर सकोगे तो एडमिटेड माना जाएगा। जिस चीज को मना नहीं किया, मैं आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिक डिनाइल इज रिक्वायर्ड। रूल 5 makes it clear that for any allegation specific denial is required। और अगर आपने स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट मानेगी कि आपने एडमिट कर लिया उस पर। कमर्शियल कोर्ट के अंदर एक और अमेंडमेंट आया है, उस पर भी आपके प्रीलिम में या किसी भी मेंस में भी सवाल आ सकता है, क्योंकि यूपी में कमर्शियल कोर्ट एक्ट को प्रीलिम में भी ऐड कर लिया। सवाल आ सकता है कि स्पेसिफिक डिनाइल में भी यू हैव टू स्टेट द रीजंस। पहले वकील साहब क्या करते थे, इट इज डिनाइड, इट इज डिनाइड, इट इज डिनाइड, पैरा 1 is denied, पैरा 2 is denied, पैरा 3 is denied, पैरा 11 is denied, it is stated, पैरा 12 is denied, it is stated। अब नहीं कर सकते हो। Now you have to state the reasons and your claim। मना कर रहे हो, ये सही नहीं कह रहा, तो तुम्हें क्या कहना है? स्पेसिफिकली ज्यूरिसडिक्शन एंड वैल्यूएशन के केस में कमर्शियल कोर्ट एक्ट में कहा गया है, ज्यूरिसडिक्शन और वैल्यूएशन, इनका अगर आपने स्पेसिफिक डिनाइल किया है तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ज्यूरिसडिक्शन क्यों नहीं है, किसकी कोर्ट की है, और तुम्हें क्या कहना है। वैल्यूएशन अगर सही नहीं है, इट इज डिनाइड दैट सूट इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, अब काम नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू स्टेट व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द रीजन। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जी 2 लाख की नहीं हो सकती, क्योंकि फलानी प्रॉपर्टी फलानी जगह पर सर्कल रेट इसका ये है, वैल्यूएशन इसकी इतनी बनती है, और ये पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में आपके आता है कि नहीं आता है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक डिनाइल इज रिक्वायर्ड। अब हम अगर टाइम पे प्लीडिंग नहीं डाल सके अपने डिफेंडेंट, आप डिफेंडेंट के वकील साहब हो, तो इफेक्ट क्या होगा? नॉट फाइलिंग WS इन टाइम और दी प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अगर कोर्ट ने मेहरबानी कर दी थी और कह दिया था कि ओके आ जाओ, 30 दिन तो निकल गए, कोई बात नहीं, रीजन शोन एंड
मे फाइल विद इन 90 days. दोनों में से कुछ भी नहीं करा, ना तो 30 दिन में करा ना 90 दिन में करा. What would be the effect? The effect is judgment shall be pronounced and decree would be drawn. अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से आ रहे हो तो बड़े आराम से कह सकते हो तेरा केस तो डिक्री हो जाएगा. वो बोलेगा बट वो आके ये कहेगा, वो आके ये कहेगा, कहता है वो कहता रहे, अब तेरे को हम डिक्री दिलवा देंगे. राइट? सो दिस इज वेरी टेक्निकल. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर आप डिफेंडेंट हो तो यू आर आउट ऑफ द कोर्ट, यू आर नॉन सूटेड. So much of responsibility on the head of the lawyer for this. Okay, this is rule 10, order 8. So order 8 rule 1 and order 8 rule 10 are very technical. अगर आप डिफेंडेंट के वकील बन के जा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. अब इसके अलावा हम जाते हैं WS के साथ आप क्या क्या कर सकते हो. प्लेंटिफ ने सूट डाल दिया, प्लेंट डाल दी, आपने उसका डिनाइल किया या एडमिट किया पार्ट ऑफ इट और स्पेसिफिकली अपनी बात कर दी. इस WS में आप न्यू फैक्ट्स भी रख सकते हो. नए फैक्ट भी ला सकते हो. आप ये नहीं कह सकते कि उसने मकान नंबर 8A के लिए बोल रखा है तो 9A के लिए भी आपको अगर कुछ कहना है या आपका कोई भी उससे कनेक्शन है उन दोनों का, तो यू कैन ब्रिंग योर न्यू फैक्ट्स. दैट वुड बी योर प्लेडिंग्स. ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ ने जितना बोला है. क्रिमिनल में क्या होता है, चीफ में जितना आया है उसी को रिवर्ट करना है. क्रॉस में नया भी कर सकते हो बट उसको कोई फायदा नहीं है. जो प्रोसिक्यूशन का स्टेट बना हुआ है, जो प्रोसिक्यूशन का केस है, बेसिकली हमारा काम है उसको रिवर्ट करना, इम्पीच करना उसकी स्टेटमेंट को. ओके. सो लेकिन यहाँ पर सिविल में WS में न्यू फैक्ट्स कैन बी ब्रॉट. इससे भी बढ़िया और क्या चीज़ है, WS के साथ आप सेट ऑफ ला सकते हो. सेट ऑफ क्या होता है, प्लेंटिफ ने 3 लाख रुपए का क्लेम डाला. आपने कहा कि जी मैंने, वो कहता है कि 3 लाख के मैंने सामान इसको सप्लाई किया था और इसने दिया नहीं मुझे, मेरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग दिखा रही है, तो मुझे कृपया इसको ब्याज के समेत दिला दो, इंटरेस्ट के साथ. डिफेंडेंट आकर कहता है कि इसका 3 लाख अगेंस्ट गुड्स ए तो मे बी ड्यू, वो तो मैं कंटेस्ट करूंगा ही, लेकिन मेरा इसके अगेंस्ट 4 लाख रहता है अगेंस्ट गुड्स बी. तो पहले उसको सेट ऑफ करो. भाई मैंने इससे पजामे का कपड़ा मंगाया था, फैब्रिक मंगाया था, पर मैंने इसको ऑलरेडी 4 लाख की बेल्ट सप्लाई कर रखी है. तो सेट ऑफ भी आप WS के साथ डाल सकते हैं. या मैंने ऑलरेडी इसको 2.5 लाख रुपए का सामान सप्लाई कर रखा है, या मैंने 2.5 लाख रुपए अगेंस्ट समथिंग दे रखा है. तो इस तरह से सेट ऑफ भी आप डाल सकते हैं. सेट ऑफ आपकी प्लीडिंग होंगी, WS भी आपकी प्लीडिंग है, और आप इसके अलावा काउंटर क्लेम भी डाल सकते हैं. और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए एक और खास बात है, अगर आपने WS के लिए पीरियड आपका 30 दिन का है और 90 दिन तक मैक्सिमम है, तो उसको आप उसके बाद भी डाल सकते हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो WS की बाउंडेशन में है. राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि आपका क्लाइंट आए और आपने बोला कि ठीक है आपका तो मैंने देख लिया और आपका खुद का आउटस्टैंडिंग निकलता है, तो हम देंगे नहीं बल्कि ले लेंगे. ठीक? तो काउंटर क्लेम इज बेसिकली ये काउंटर प्लीडिंग. ये हो गया कि वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ हो जाता है उसमें काउंटर क्लेम में.
तो काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट बिकम्स प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ कन्वर्ट्स इनटू डिफेंडेंट फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर क्लेम। प्रैक्टिकली आपने वैसे तो प्लेंट नहीं करा, बट दिस सेट ऑफ एन काउंटर क्लेम इज अवेलेबल ओनली फॉर लीगली रिकवरेबल अमाउंट। पहली कंडीशन लीगली रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बियॉन्ड द पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकता। अगर आप उनकी पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन एक्सीड नहीं करेंगे उसमें, अगर उनकी पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 3 लाख की है और आपका क्लेम काउंटर क्लेम 5 लाख का है तो वो नहीं चलेगा, राइट। सो यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ और यू हैव टू गो फॉर अनदर प्रोसेस। तो ये 2 चीजें आपको ख्याल रखनी है, लेकिन आपका WS सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इसमें आएगा। कमर्शियल कोर्ट ने एक अमेंडमेंट करके एक और चीज कर रखी है, उसने तो कहा है ना कि फोरफीट ही हो जाएगा तुम्हारा राइट। ये बात WS वाले में नहीं लिखी हुई, हमारे CPC में ऑर्डर 8 में नहीं है क्लियरली, लेकिन वहां लिख दिया है। और वहां उन्होंने ये भी कर दिया है कि कोर्ट विल नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आफ्टर 120 डेज। अब ऑर्डर 8 के अंदर WS में 90 डेज के बाद ये नहीं लिखा है कोर्ट मे नॉट एक्सटेंड, कोर्ट शैल नॉट एक्सटेंड, ये चीज एब्सेंट है। तो मे बी डिस्क्रिशन और फॉर सम रीजन, बट वहां ये क्लियरली लिख दिया है कि कोर्ट विल शैल नॉट एक्सटेंड। सो कमर्शियल कोर्ट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज प्रोविजंस। कमर्शियल कोर्ट एक्ट का अमेंडमेंट है ये। अब हम ऑर्डर 8 में जजमेंट भी करा दी हमने। अगर 5 मिनट और, अब हम आएंगे ऑर्डर 9 पर। ऑर्डर 9 is relating to appearance and effect of non-appearance। ठीक है जी। दूसरी पार्टी को सर्विस करी और उसने अपीयर नहीं किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, या तुम ही अपीयर नहीं हुए तो दिस इज अपीयरेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज, दिस इज रिलेटिंग टू अपीयरेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज एंड द प्रोसेस हाउ द अपीयरेंस शैल बी प्रोक्योर्ड, राइट। ऑर्डर 9 के ज्यादातर रूल इंपॉर्टेंट है लाइक ऑर्डर 7, और प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से पेश हो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1, जब आपने सूट फाइल किया तो आपको प्रोसेस फाइल करना होगा। ओके, प्रोसेस मतलब PF। किसके लिए? दूसरी पार्टी के लिए, फॉर डिफेंडेंट। अगर आपने PF फाइल नहीं किया कोर्ट ने लिख दिया समन्स फॉर सेटलमेंट ऑन फाइलिंग ऑफ PF फॉर सच एंड सच डेट, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हम जाएंगे डेट पर, कह देंगे जी भूल गए, बाद में दोबारा कर दो जी। नो, योर सूट वुड बी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच,
आपने बड़ी हड़बड़ी करी, बड़ी अच्छी प्लेन बनाई थी, बट सॉरी आप पीएफ फाइल नहीं कर सके। सो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से पीएफ फाइल करना जरूरी है। अब मान लीजिए इसकी एक और क्लॉज भी है, रूल 5, इसी में प्रोसेस में ही। अगर प्रोसेस मान लीजिए दोबारा से ऑर्डर कर दिए जाते हैं नॉन फाइलिंग पे, तो जिस डेट पर नॉन फाइलिंग के ऑर्डर हुए हैं फ्रेश प्रोसेस के, उसके विद इन 7 डेज, उसमें डेट का कोई चक्कर नहीं है कि डेट से पहले, विद इन 7 डेज जिस दिन नॉन फाइलिंग के फ्रेश प्रोसेस हुए हैं, नॉन फाइलिंग के बाद अगर नहीं किया तो भी डिसमिस हो जाएगा। तो प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो टाइम बाउंड, राइट। कई लोग कहते हैं सिविल सूट डाल दिया 20 साल तक देखेंगे, ऐसा नहीं है। सीपीसी हैज बाउंड एवरीबडी टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रेट्स। अब हम आ जाते हैं रूल 3 पे, ठीक है, ये प्रोसेस इफेक्ट हो गया। अब रूल 3 बहुत ही खूबसूरत है। वो कहता है अगर दोनों पार्टी अपेयर नहीं होती, प्लेंटिफ भी घर बैठ गया, डेट भूल गया, और डिफेंडेंट अभी सर्विस नहीं हुई थी या सर्विस हो भी गई तो भी वो घर बैठा है, तो भी ये डिसमिस हो जाएगा इन डिफॉल्ट। ये डिसमिस किस पर हुआ था? नॉन प्रोसिक्यूशन पर, और ये होगा इन डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस। ओके, अब अगर डिसमिस हो जाएगा दोनों चीज़ों में, 2 और 5 पर, और 3 में भी डिसमिस हो जाएगा, तो क्या कोई रेमेडी नहीं है? आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हो, आराम से जाओ बोलो क्लाइंट से कोई बात नहीं चलो नया डालेंगे, और रीस्टोर भी कर सकते हो। कोई मुझे बताएगा कि ये सवाल है कि जब फ्रेश फ्रूट डल सकता है तो रीस्टोर के चक्कर में क्यों पड़ो? रीजन बताओ, ये करो वो करो। ऐसा क्यों नहीं है? जिसका डिसमिस हो जाए फटाक से जाए फ्रेश डाल दे, रिजेक्ट हो गया फटाक से जाए और डाल दे, आसान रास्ता है। रीस्टोर के चक्कर में क्यों पड़ेगा वो? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितनी फीस लगेगी? प्रेस बड़ा मजेदार है, आ जाओ वकील साहब कोई बात नहीं, हो गया कोई नहीं। मिस्टर ए पहुंचे ही नहीं, जूनियर वकील, पीएफ फाइल ही नहीं हुआ, वकील साहब ने जाके बोल दिया अपने सीनियर को, सर क्या करूं बहुत सिर में दर्द हो गया था, मैं पीएफ फाइल नहीं कर सका टाइम पे। सीनियर बोलेंगे नो प्रॉब्लम, आ जा फ्रेश ला देंगे। कोई बात नहीं सर, ऐसा करते हैं, वो मैडम ने बताया था कि फ्रेश डाल सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट निकालो अभी साइन कराते हैं, क्लाइंट को बुलाओ, बल्कि उससे और फीस ले लेंगे और डालते हैं। इतना प्यार नहीं, सीनियर जी क्या करेंगे, जूनियर को कहेंगे तू अपने घर जा आराम से सो, बहुत हो गया, जो उसकी कोर्ट फीस है वो तो तुम्हारे चाचा जी देंगे, नहीं देंगे ना। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पीएफ फाइल नहीं किया, पीएफ हुआ आपका 300 रुपये का, 200 रुपये का, कितने का लगेगा, है ना? 7 दिन में निकल गए, वो भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं सर, वो एक प्रोविजन है फ्रेश सूट, रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, फ्रेश सूट हमारे को क्या कंप्यूटर में फॉर्मेटरी? नो, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। सो फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज रिमेंबर, अगर जज बनना है तो उसके बाद अगर वहाँ पे आंसर गलत लिख दिया, ये याद रहा, अरे फ्रेश लिख दो,
टाइम भूल गए तो क्या हुआ, कोई नहीं सर, फ्रेश तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये हुआ रूल 4। अब हम आएंगे ऑर्डर 9 रूल 6। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम 9 करेंगे, और उसके बाद 9 की बात अभी नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसे समझाने के लिए हमें एक लेक्चर करना पड़ेगा। तो 9 में ये बता रखा है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो तो एक्स पार्टे हो जाएगा, अगर डिफेंडेंट सर्व नहीं हो तो फ्रेश प्रोसेस हो जाएगा, और अगर सर्व हो, लेकिन आपने पीएफ ऐसे टाइम पे फाइल किया है कि उसकी सर्विस इफेक्ट नहीं हो पाती, लखनऊ से आना है उसको, एड्रेस उसका लखनऊ का है, और आपने पीएफ डाला है 2 दिन पहले, प्रोसेस इशू हुआ 1 दिन पहले, सर्विस ही पॉसिबल नहीं है। अगर डिफेंडेंट सर्व्ड है लेकिन सफिशिएंट टाइम नहीं था और प्रोसेस उसको टाइम पे नहीं मिला है, ही इज नॉट एबल टू अपीयर बिकॉज ऑफ योर डिले ऑफ प्रोसेस, देन रीप्रोसेस। रीप्रोसेस में भी वही बात है कि जब आप रीप्रोसेस करेंगे तो आपको खाली पीएफ नहीं डालना है, बल्कि पूरी की पूरी प्लेंट और सब कुछ दोबारा डालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते पहले वाला जो डाला हुआ था उसमें निकाल दे और लगा दे, राइट। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ, मान लीजिए 100 पेजेस की प्लेंट है तो ये होगा 9/7 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो मुझे कोई बताएगा कि 9/7 क्या कहता है? ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखने वाली। आप लोगों को अगर खुद बताएंगे तो ही याद रहेगी। इसकी टेक्निकलिटी भी बताऊंगी मैं। 9/7 नहीं पता किसी को? सपोज 6 में डिफेंडेंट एक्स पार्टी हो गया, अब तो बड़े खुश हो गए, अच्छा है एक्स पार्टी करके आए हो सर, अब बस जजमेंट होने वाली है। लेकिन भैया जी अपीयर हो जाते हैं नेक्स्ट डे, सेटासाइड तो बहुत अच्छा है, वो तो है, सफिशिएंट कॉज आया, सेटासाइड कर दिया, फिर चालू हो गया, प्रोसेस करा, सब कुछ करा। लेकिन मान लीजिए कि वो एक तो पीरियड है, कितनी देर पहले कर सकता है, कितना समय है, लिमिटेशन। दूसरा ये है कि उसके पीछे जो प्रोसीडिंग हो गई, क्या उसकी क्लॉक बैक होगी? 9/7 जरा मुझे पढ़ के बताएंगे, ये लीजिए इसमें से लो, फिर मैं 9/9 बताऊंगी, और आज के लिए इतना ही। Procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assign good cause for previous non-appearance. Where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assign good cause for his previous non-appearance. He may, upon such terms as the court directs as to cost or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. अगर वो सफिशिएंट कॉज बताता है कि मैं उस डेट पर क्यों नहीं आ सका, तो कोर्ट मे अलाउ हिम टू ज्वाइन। मेरा क्वेश्चन है कि उसके पीछे जो प्रोसीडिंग हो गई, क्या वो वापसी हो जाएंगी? नहीं, यही उसकी प्रॉब्लम है। जो 6 और 7 के बीच में आ गया, अपीयरेंस तो अलाउ हो जाएगी उसको, बट जो प्रोसीडिंग एक्स पार्टे हुई वो नहीं कर सकते। और 9/13 जो सेटासाइड करने के लिए, एक्स पार्टे सेटासाइड करने के लिए बना है, उसमें भी प्रोसीडिंग को सेटासाइड करने का कोई राइट नहीं है एक्स पार्टे का। टिकरी इसलिए मैंने कहा था कि 9/13 आज हम नहीं करेंगे। ये अच्छा है कि सफिशिएंट कॉज दिखाया और आप आ गए, 3-4 डेट के बाद आ गए। एनबीडब्ल्यू की तरह जैसे क्रिमिनल कोर्ट में होता है, आगे बाद में दिखाया, ठीक है ज्वाइन कर लो,
लेकिन ये एक है CPC में, यही एक क्लियर प्रोविजन है जो ये कहता है कि यहाँ आप एक्सपर्टे हो गए, ये सफिशिएंट कॉज दिखाया, यहाँ आ गए, अलाउ कर दिया, बट जो आपके बैक में हो गई, क्लॉक हैंड्स विल नॉट गो बैक टू द प्रोसीडिंग्स, राइट। अगर उसके पीछे से कोई ऑर्डर हो गया जो उसको नुकसान कर रहा है, उसके लिए उसे सेट असाइड ऑफ ऑर्डर के लिए, अगर वो इफेक्टिव ऑर्डर है, किस प्रोविजन में जाना होगा वो देखना है। ऑर्डर 99 क्या कहता है, ये हमने यहां पर बताया, रूल 4, रिस्टोर कर सकते हैं, राइट। 99 में जो आपका डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है वो आप कर सकते हैं। और 99 के अंदर एक और टेक्निकलिटी है, 99 भी पढ़ो, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटी बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set aside the dismissal aside, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance. So be very clear. 98 में जो गया, 99 में रिस्टोर हो सकता है, लेकिन सेट असाइड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसकी भी सेम हालत है 9697 जैसी। जब हम 913 करेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 9 को भी एक बार से रिविजिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आज हमने ऑर्डर 8 एंड 9 CPC के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स कवर किए। किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो पूछ सकता है। सो थैंक यू।